So let us start. So good morning, student. Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. See, this is our last module of 703C. Okay, you can see this is the last module and the important one also. That is railway engineering. I think KK sir has already taught you most of the chapters from railway engineering. Okay, so I am teaching, and he has started this geometric design. So I am teaching this one. Okay, I will start from here, geometric design. Now, what do you understand by the geometric design? Anyone? What we will learn, what we are going to learn in this chapter in geometric design, whether it is of highway or roadway or railway. Geometric design means what? The Rail brother. design of the permanent way. Design of the permanent way. Okay, that means railway track. Here our way is what? Way for the rail is your railway tracks. Okay, so we have to design the on the portion of the land which is used for railway tracks. We have to design that way. Okay, so here basically geometric design means whatever visible structure or whatever visible features that we can see through our naked eye, we have to design those design those features. Okay, so these are the topics that we will learn under this geometric design. Okay, overall topic, that is what, why we need to do geometric design, necessity. Okay, and very important terminology is that gradients and grade compensation. First we need to know what is gradients, then we will learn grade compensation. Okay, compensation means what? We will reduce the gradient whatever is their value, there will be some design gradient value. Okay, so such in case of curved roadway, oh sorry, in case of curved topography, then what happen, or in case of hilly areas, there you will find gradient as well as curves. Okay, so in that case we have to reduce the design gradient value, so that is called grade compensation. So how much we will reduce, we will see that also, and we will try to solve one small problem also, depending based on this grade compensation. Okay, and the another important topic is what? Horizontal curve. Okay, so, or there will be vertical curves also, but in the as per your syllabus this horizontal curve is important. Okay, as per your syllabus, so I will discuss horizontal curves. So in this topic, what we need to cover? Speed, there will be different formulas. Okay, radius or degree of curvature, it is related to degree of curvature. Okay, super elevation, so we know that wherever there is a curve there will be some extra, there will be generation of centrifugal force. So in order to reduce or counteract that force, what we have to do? We have to provide some super elevation at the outer portion of the roadway or your railway. In like roadway we are providing super elevation, here also we need to provide some super elevation, but here super elevation is known as cant. In many problem they will not give you super elevation, they will tell you cant value. Okay, so the cant and super elevation both are same. Okay, now comes Kant deficiency also. What do you understand by Kant deficiency? And another most important terminology is your negative super elevation. We will see where such negative super elevation may occur like that. Okay, so these are the topic. Let's see where we will complete. Okay, so why? Necessity of the geometric design is for smooth and safe running, that we know, right? If in case of curve, if we do not provide our this what to say super elevation, then what happens? Because of the centrifugal force, your train will get outward force. It will an outward force will be exerted on the train. Then what happens? Then they have the tendency to overturn. Okay, or they will
overturn, they will come out of the path, but here it is permanent path, not like a roadway, so it can slide, right? So what happens, instead of sliding, it will overturn, so there will be accident also. Okay, so for smooth and safe running of the trains, we need to provide geometric designs, we need to design those geometric features. Okay, for getting maximum speed, for also our riding must be maximum, it should go with a maximum speed, it should not be like that we will your speed of the train is very slow. Okay, so we have to maintain that speed also. It should carry heavy loads also, right? Like malgudis and these things, what happens, we are carrying huge amount of load, right? Luggages and all, so you need to carry that amount of load also. For that also we have to design our safe gradient. Gradient means what? Upgrade or downgrade. There are two types of gradient, opposite, positive and negative. Positive means what? Rise, okay, rise in elevation, and negative means what? Fall in elevations, in a longitudinal way, not in a transverse way. Okay, in a longitudinal way, there is rise in elevation and there is fall in elevation. So while, so say for example, there is a gradient is like this. Okay, oh sorry, pointer. Oh. See, suppose a train is coming from here and there is the rise in the elevation. Okay, so your train is moving in this direction, suppose. Okay, train is moving in this direction, there is a railway track like this. Okay, so it is moving like this. So if there is like this gradient, then what happens, it will face some difficulty to travel, right? Because of its own weight, it has a tendency to go downward, right? But it has to carry its load along with the other rail loads also. That is what? Axle loads, other axle loads, total axle load it has to carry and move in the forward direction. Okay, so if we design this gradient, this is called the gradient. Okay, this is the up gradient. Okay, if we design this gradient in such a manner that it is very dangerous, it is very steeper gradient, or we can say it is more than our required ruling gradient. Ruling gradient means it is a maximum gradient that we can provide. Okay, so it is maximum, we have designed our gradient such that it is increasing, it is more than the ruling gradient, which is the maximum gradient. Then what happens, it cannot carry huge amount of the load. So what happens, we have to reduce the carrying capacity. Okay, or we can say we have to reduce the hauling capacity of this train. Okay, so we cannot carry huge amount of loads. So in that case, so it will become what? So it is one kind of disadvantage. Okay, so in order to carry maximum load, what happened, or huge amount of the load, we have to design our gradient in such a way that it will easily move forward along with carrying huge amount of the load. Okay, also to avoid accident, derailment, okay, less maintenance effort. Okay, if your design is such that it is there is some outward force, say for example in a curve, what happens, the train will get an outward force. Okay, so exerted maximum force will be exerted in the outer axle, right, outer wheel. Then what happens, because of that wear tear of the rails will occur. Okay, so if wear tears occur, then we have to increase our maintenance, right? We have to increase our interval of maintenance will be less. That means within a less period of time, that rail has to be changed. Okay, so what happens, your maintenance cost is again increased. Okay, so see, in this manner, that's why it is necessary geometric design, because it will affect in many ways. Okay, if we design our geometric features in a very well way, then what happens, we will reduce all these things. Okay, so see, so another, if we broadly classify the necessity, then we can say that
because of there will be defects in the, if your geometric design is, you have not designed in a proper way, then these are the defects that may occur. Okay, track defects, vehicular defects, operational defects. Okay, so basically track defects deals with the geometric design only. In order to reduce this defect, we have to do proper geometric design. Okay, vehicular defects, it is another case, and operational means who is operating this traffic control system and everything. Okay, so mainly traffic defect depends upon the geometric design only. Now, what is traffic defect? See, defective cross, how it will occur? If the track is straight, then the defectives are due to cross levels, alignment, gauge, joints. Okay, in these cases, you may there will be some defectives. Okay, if they are straight, if your track is straight, and in case of curved track, what happens? If your super elevation is improper, okay, as I said, if it is improper, then external force will act, which will, as a result, what happens? The outer railway track, the wheel will exert more force in the outer railway track, then because of that, wear tears will occur. Okay, so these are the curved tracks. Okay, and also unequal distribution of load may occur. So it should be, railway tracks should be designed to the load as well as the speed of the trains, and should meet safety and economic standard. Economic means maintenance cost should be reduced. Okay, now comes the next topic, which is the gradient. I think you have learned this gradient many times. You have heard this gradient many times in your geometric design of highway also. Okay, in your transportation engineering also, and your KK sir here also explained this gradient also. I think this chapter he has already explained. Okay, I will just go through it. Now, gradient means what? See here, it is actually what? Rise or rate at which there is a rise or fall of the elevation. Okay, rate at which, that means it is denoted in, say for example, suppose this is what? Vertical is 2 meter. If you walk horizontally 50 meter, then the point of, or we can say the rise in your elevation, suppose this is your first point, this is your second point. Okay, the horizontal distance between the first and the second is suppose 50 meter. Okay, so it is rising, that means elevation of this is here suppose 0, and the elevation of this is suppose 2 meter from the base. Base is what? 0 suppose. Okay, so the rise in elevation of the 2 points is known, or the, we can say, rate of rise is known as the gradient. If it is rise, then it is upgrade or positive gradient, and if it is fall, then it is downgrade or negative gradient. I think it is clear. Okay, basically train will travel in this direction. Okay, this longitudinal direction rise, this is not the cross sectional view, this is basically the longitudinal section view. Okay, that means train is moving from in this direction, it is moving in this direction. Okay, so it is longitudinal section, so the gradient in longitudinal section. Okay, now there are many denotion how it will sometimes it will be denoted in percentage, like 4%. Okay, and now 4% means what? 4 by 100, that is 1 by 25, that means 1 in 25. That means if you go 25 meter, then the rise in the elevation will be 1 meter. Okay, or rather we can say if you go 50 meter, your rise will be 2 meters. Say for example, in this case the gradient is positive 2 by 50, which is 1 by 25, or if you convert it into percentage, then 1 by 25 into 100 will give you 4%. Okay, so this is your positive gradient. Clear? This one clear, na? If not clear, then please tell me. Okay, so in this way you can transfer, change your gradient also. If in question it is given in 1 in 25, but you have to calculate in percentage, so this way you have to do. Okay, so 1 in 25 into 100, like that. See here, this is an example. If there is a rise of 1 meter in 400 meter, then the gradient is your 1 by 400. Okay, and in percentage, what happens? 1 by 400 into 100, how much it will give? 1 by 400 into 100 will give you 0.25%. Okay, so like this, rise and fall, both are there. Now comes why we need to provide this gradient. Any idea why we need to provide this gradient? Why is it necessary?
Why our railway track it won't be we can't design it as always as a straight track? Why we have to provide gradient, or we can say where we need to provide gradient, in which areas? हाँ बोलो बोलो, ग्रेडियंट क्यों देते हैं हम लोग, बोलो बोलो, कहाँ कहाँ पे देना पड़ता है ग्रेडियंट? सपोज यू आर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, तुमको दे दिया है सर्वे करने के लिए कोई जगह पर रेलवे ट्रैक का, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे ग्रेडियंट देना पड़ता है और क्यों देना पड़ता है? तुम बोलोगे अच्छा यहाँ पे ऐसा ऐसा है, ये वाला एरिया ऐसा है, तो ठीक है हम लोग यहाँ पे ग्रेडियंट दे देते हैं। तो व्हाट इज दैट कंडीशन? मतलब कि हमारा ट्रैक इट विल नॉट बी अ लेवल ट्रैक, ओके, देयर विल बी सम अपग्रेड, देयर विल बी सम डाउनग्रेड। तो क्यों होता है वैसा, बोलो? नेसेसिटी ऑफ ग्रेडियंट क्या है, कोई भी एक बोलो। हेलो, ম্যাম ওই পাথটা চেঞ্জ করার সময় হতে পারে। পাথটা চেঞ্জ করার সময়, পাথ মিন্স মানে ম্যাম দুটো এলিভেশন কে কানেক্ট করার জন্য গ্রেডিয়েন্ট দিতে হতে পারে। yes, path change means that there will be change in the direction, okay, so change in the direction, for that we have to provide horizontal curve, not the gradient, okay Shriman. But in order to connect that two points which are at a different elevation, ठीक है, तो करने के लिए क्या होता है कि कभी कभी तुम लोग को ग्रेडियंट दे देना पड़ता है, सो दैट तुम्हारा खर्चा, कटिंग, हीलिंग, ये सब का खर्चा कम लगे, ठीक है। तो क्या हो जाता है, सपोज तुमको एक जगह यहाँ पे है और एक जगह यहाँ पे है, तो क्या करना चाहिए था तुमको? वहां पे जाने का बहुत सारा रूट हो सकता है, राइट, वी कैन रीच दैट पॉइंट यूजिंग मेनी रूट्स, ठीक है। अब कुछ कुछ रूट्स क्या है कि लेवल्ड है, ठीक है, कुछ कुछ रूट्स लेवल्ड है, बट क्या हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल, रुको, जैसे कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, इसका एलिवेशन यहाँ है, इसका एलिवेशन सपोज यहाँ है, ठीक है। तो एक होता है कि तुमको कहीं इसका रूट बहुत सारा है, ठीक है, एक है तुम्हारा सपोज, इसका पूरा एकदम स्लोली छोटा छोटा ग्रेडियंट करके तुम जाओगे, स्लोली करते 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 जाओगे, ठीक है, ऐसे ऐसे पहाड़ के ऐसे घूम 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 के यहाँ पे जा रहे हो, ओके, एक ऐसा है। और एक है कि तुम्हारा क्या करते हो, यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि चलो यहाँ पे फिलिंग कर देते, पूरा पूरा रास्ता को फिल कर देते हैं, ठीक है। एक है कि लेवल्ड है, पूरा लेवल्ड है, ठीक है, इनका पूरा लेवल्ड है, लेकिन वहां पे क्या करना है, इसको ज्वाइन करने के लिए वी आर फिलिंग दैट पोर्शन सो दैट वी कैन इंक्रीज द हाइट, राइट। और एक केस क्या होता है कि तुम ऐसा पाथ से जाओ कि वहां पे ऑलरेडी एक एलिवेशन है, वहां पे ऑलरेडी एक ऐसा ग्रेडियंट है, बट वो उबड़ खाबड़ है, लेकिन हमको थोड़ा प्लेन करके वहां से थोड़ा मतलब अच्छे से कंस्ट्रक्शन करके जाएंगे, मतलब एक एरिया है ऑलरेडी, एक लोकेशन है जो थोड़ा ऐसा ऊंचा है, उसी से हम लोग जाएंगे, ओके, सो वी आर फॉलोइंग दैट ग्रेडियंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारा अलग से मतलब बाहर से कोई एक्स्ट्रा मटेरियल लेकर यहाँ पे एम्बैकमेंट करने का जरूरत नहीं है, खर्चा नहीं है। और दूसरा है कि इतना लंबा रूट पकड़ के भी तुमको जाने का जरूरत नहीं है, वहां पे भी खर्चा ज्यादा हो जाएगा, राइट। सो इन दैट केस वी कैन प्रोवाइड ग्रेडियंट, ओके। सो एक होगा कि तुमको इकोनॉमिक रखने के लिए एक होगा, ठीक है, जैसे देखो टू प्रोवाइड यूनिफॉर्म रेट, ये तो दूसरा है, टू प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ राइज और फॉल, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग ग्रेडियंट देते हैं, यूनिफॉर्मली ये जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा ऊपर खाबर ऐसा है, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, तो ऐसा ऊपर खाबर रख के नहीं, एक यूनिफॉर्म ग्रेड हमको देना है, ये है। टू रीच द वेरियस स्टेशन लोकेटेड डिफरेंट एलिवेशन, जैसे अभी उसने बोला, पुलक ने कहा, जैसे वेरियस लोकेशंस एट द डिफरेंट एलिवेशन, एंड आल्सो टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क, जो हमने कहा, ओके, टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क, हमको एक्स्ट्रा वहां पे काटने का भी जरूरत नहीं है, वहां पे एम्बैकमेंट देने का भी जरूरत है। वी आर यूजिंग द नेचुरल्स, जो भी लैंड है जिसमें एलिवेशन है ऑलरेडी, राइज और फॉल हो रहा है, उसको थोड़ा अच्छे से बना के वहां पे रेलवे ट्रैक लगा देंगे, ओके। सो ये है मेनली इसका क्या बोलते हैं रीजन, ओके। नाउ कम्स वेरी इंपॉर्टेंट जो है, अब आता है कि ग्रेडियंट। अब ये जो ग्रेडियंट है, एक राइज या फॉल जो भी है,
ये डिफरेंट टाइप्स का होता है। ओके, सब एक ही टाइप का नहीं है कि मतलब एक ही रेट में जा रहा है, वैसा नहीं है। रेट किसी का कम है, रेट किसी का ज्यादा है, राइट। कोई कोई तुम्हारा ग्रेडियंट इट इज स्टीपर, कोई कोई इट इज फ्लैटर, ठीक है। तो फर्स्ट जो ग्रेडियंट आता है व्हेनेवर वी डू डिजाइन व्हाटएवर, जो भी आता है हम लोग का रोडवे हो रेलवे हो जो भी है, एक रूलिंग ग्रेडियंट आता ही है, ठीक है। दैट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट जो हम लोग दे सकते हैं, ठीक है, इन फॉर डिजाइन पर्पस, ठीक है। उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। उससे ज्यादा भी होता है लेकिन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस है, लेकिन मैक्सिमम हम लोग जो करते हैं एज पर डिजाइन, दिस इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट। ओके, दूसरा क्या है, मोमेंटम पुशर ग्रेडियंट एट स्टेशन। स्टेशन यार्ड में भी ग्रेडियंट देना पड़ता है, ठीक है। ये सबसे फॉर ड्रेनेज पर्पज एंड ऑल, ठीक है। ये हम आते हैं क्या क्या होता है, ठीक। रूलिंग ग्रेडियंट क्या है, इट इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट अलाउड ऑन द ट्रैक सेक्शन, ओके। एंड सिंस ये क्या है, एक डिजाइन पर्पस के लिए करते हैं, तो हम लोग बोले थे ग्रेडियंट कैसे देना है, सो दैट इतना हाई भी नहीं देना है, इतना स्टीपर ग्रेडियंट भी नहीं देना है जिससे कि हम लोग कैरी नहीं कर पाए, लोड को कैरी नहीं कर पाए, ठीक है। सो ये जो मैक्सिमम ग्रेडियंट क्या करता है, इट डिसाइड्स द मैक्सिमम लोड दैट एन इंजन कैन हॉल, ओके। ऑब्वियसली एक ग्रेडियंट है, उसमें उसी के हिसाब से हम लोग डिजाइन करके रेल को बोलेंगे कि इतना ही मैक्सिमम लोड ये कैरी कर पाएगा, ठीक है। उससे ज्यादा अगर और स्टीपर हो गया तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, डिफिकल्टी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमको और लोको और इंजन चाहिए और लोको चाहिए, ठीक है। सिर्फ एक इंजन से नहीं होगा, और इंजन सपोर्ट में चाहिए, राइट। सो दिस इज यूज्ड फॉर डिजाइन पर्पस। जेंटल स्लोप इज मोस्ट डिजायरेबल, ज्यादा हाई स्टीपर नहीं होना चाहिए। एंड दिस इज द, ये वाला एमसीक्यू के लिए याद रखो, ओके। ये क्या है तुम्हारा क्या बोलते हैं, लिमिटेशन, लिमिट ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। इन प्लेन एरिया दिस इज द रेंज, इन हिली एरिया दिस इज द रेंज। देखो हिली में स्टीपर है, ये जितना कम है मतलब क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन वर्टिकल कंपैरेटिवली इससे क्या है, थोड़ा ज्यादा है। ऑब्वियसली देखो ये जा रहा है, सपोज देखो ये है, इसका अगर हम करेंगे ये 150 मीटर जा रहा है, ठीक है, जाके ये उठ रहा है 1 मीटर, तो इसका ग्रेडियंट ए है, ओके। दूसरा देखो, दूसरा क्या जा रहा है, दूसरा जा रहा है तुम्हारा 100 मीटर, मतलब समवेयर यहाँ पे, ठीक है, उठ के, लेकिन उसका ऊपर का कितना है, वर्टिकली कितना जाएगा, वर्टिकली सेम, ये जितना हाइट है इसका भी वही हाइट है, ओके। अब ये दोनों ज्वाइन करो। नाउ टेल मी विच इज मोर स्टीपर, ये या ये, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा स्टीप लग रहा है तुमको? सेकंड वन। सेकंड, ठीक है। सो हिली में क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हिली में तो ऑब्वियसली वहां पे सब कुछ लोकेशन तो अपना अलग अलग उसमें ही है, लाइक एलिवेशंस में ही है। प्लेन में तुम्हारा ऑलमोस्ट लेवल्ड में जाता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम हम लोग यही दे सकते हैं विद इन दिस रेंज, ओके। और हिली में दिस इज द मैक्सिमम रेंज, ओके। तो ओके, अब सी डिपेंडिंग, हम क्या बोले थे, डिपेंडिंग अपॉन दिस ग्रेडियंट वी कैन कैलकुलेट कितना लोड ये कैरी कर सकता है, ओके। सो दिस इज द मेथड, ठीक है। सपोज यहाँ पे दिया है देखो कि दिस इज द फॉर्मूला, ओके। जैसे ये वाला ट्रेन जा रहा है, इसका W विल बी हियर, ओके, एंड दिस इज योर W साइन थीटा, ओके। सो W साइन थीटा, अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो इसको हम लोग tan थीटा भी कंसीडर कर सकते हैं। नाउ tan थीटा फॉर दिस ग्रेडियंट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। दैट इज, ये क्या है, ये 1/150, मतलब ये क्या है तुम्हारा ग्रेडियंट है, राइट। सो tan थीटा इज ग्रेडियंट, सो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा इज नथिंग बट द ग्रेडियंट, जिसको हम लोग 1/x करके भी लिख सकते हैं, या ओके, या n% करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द एडिशनल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर द लोकोमोटिव ऑफ द ट्रेन वेइंग 500 टन्स। तो W दे दिया है, टू नेगोशिएट अ राइज ऑफ कितना है, 1 मीटर इन 200, सो 1/200 है, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको दे दिया है। सो ये वाला अगर सब्स्टिट्यूट करके पुट करोगे तो कितना इसको एक्स्ट्रा पुल चाहिए, राइट। एक्स्ट्रा पुल मतलब क्या, ये W साइन थीटा यहाँ से खींच रहा है, उसको उतना ही पीछे से धक्का देना चाहिए कि जिससे इसको टैकल कर सके, राइट। सो W tan थीटा इज द एक्स्ट्रा पुल, ओके। सो मतलब ये क्या है, ऑपोजिट
यहाँ पे ये डाउनवर्ड में ये वाला एरो जा रहा है, मतलब दिस इज व्हाट but the W gradient, okay, so that W sin theta is the extra pull. This is W sin theta, ठीक है, and this is the extra pull. तो दोनों को इक्वेट कर दिए हम लोगों ने, ओके। सो कितना पुल देना चाहिए, मच पुल, ठीक है। सो W है तुम्हारा 500 टन्स, ग्रेडियंट बोला था कितना 1/200, सो 1/200, सो टोटल 2.5 टन्स हमको एक्स्ट्रा इंजन पावर देना है, ओके। नाउ कम्स सेकेंड ग्रेडियंट। सो ये है तुम्हारा रूलिंग ग्रेडियंट, दिस इज द मैक्सिमम ग्रेडियंट हम लोग डिजाइन के लिए जो चाहिए, ओके। नाउ बेस्ड ऑन दैट ओनली वी कैन आल्सो कैलकुलेट दिस W भी कितना होना चाहिए, यहाँ पे तो दे दिया है, ठीक है। तुमको W भी निकालने के लिए बोल सकता है कि कितना ये कैरी कर सकता है, ओके। नेक्स्ट इज अ मोमेंटम ग्रेडियंट। मोमेंटम मतलब है ना, मतलब कि मतलब ये मोमेंटम मतलब है, सपोज से फॉर एग्जांपल तुम साइकिल लेकर इधर से आ रहे हो, ठीक है। सपोज ऐसा वाला रास्ता है, ठीक है, तुम यहाँ से साइकिल से इस तरफ आ रहे हो, ठीक है। आते आते क्या होता है, तुम पैडल पहले क्या करते थे, इसको ऐसे एक एनर्जी इसको मिल रहा है, राइट, काइनेटिक एनर्जी एक मिल रहा है, तो करने से यहाँ पे पहले सपोज तुम ऐसे प्लेन था, अब ऐसे करके उठ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। साइकिलिंग यहाँ से कर रहे थे, प्लेन था यहाँ पे, अब उठने के लिए क्या है, तुमको पैडल मारना पड़ेगा, राइट, पैडल मारना पड़ रहा है, मतलब तुमको खुद एक एनर्जी देना पड़ रहा है उठने के लिए, राइट। लेकिन अगर ऐसा रास्ता है तो क्या होता है, ऐसा रास्ता होने से तुम साइकिलिंग से आ रहे हो, ठीक है, कुछ पैडल भी नहीं मार रहे हो, करके एक एनर्जी मोमेंटम क्रिएट हो रहा है, खुद का एक एनर्जी हो रहा है, होते होते तो क्या हो जाता है, और ऑब्वियसली तुम यहाँ से देखना अपने आप ही ऊपर उतना इजीली, जितना यहाँ पे एनर्जी लग रहा है यहाँ पे उतना एनर्जी लगेगा नहीं, क्योंकि ये जो एनर्जी तुमको पीछे से मिला था फॉलिंग ग्रेडियंट की वजह से, यू आर यूजिंग दैट एनर्जी टू go above the rising gradient, ठीक है। so this type of gradient, ये जो है falling फिर rising, उसको बोलते हैं मोमेंटम ग्रेडियंट, ओके। ऐसा भी कई सारे तुम्हारे रेल्स में होता है, रेलवे ट्रैक ऐसा भी कभी कभी होता है कि एक फॉलिंग है फिर राइजिंग है, तो उसको बोलते हैं मोमेंटम, ओके। तो मोमेंटम ग्रेडियंट इस ऐसे टाइप को बोलते हैं। सो और ये वाला टाइप का ग्रेडियंट इट मे बी स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट, लेकिन फिर भी ये इजीली, मतलब ये जो ग्रेडियंट था, ये जो ऊपर वाला जाने का जो ग्रेडियंट है, इट मे बी स्टीपर, लेकिन फिर भी ये इजीली चला जाएगा, क्यों, बिकॉज ये वाला जो ऊपर से नीचे से जो ऊपर आ रहा था उससे एक एनर्जी क्रिएट होकर वो एक एनर्जी इसको पुश करने का दे रहा है, राइट, वो जो एक्स्ट्रा पुल था वो दे रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो ऐसा फॉलिंग ग्रेडियंट है फिर राइजिंग ग्रेडियंट है, ठीक है। अगर ये पूरा स्ट्रेट होके पूरा एकदम जाता और फॉलिंग में तो इसको थोड़ा तकलीफ होता है, राइट, बट बिकॉज ऑफ दिस फॉलिंग ग्रेडियंट एक एनर्जी क्रिएट हो रहा है, पुल क्रिएट हो रहा है, उससे ये इजीली मूव कर रहा है, ओके। जैसे कि ये वाला देखो, आई थिंक दिस इज क्लियर, राइट। सो मोर स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट बट डू नॉट डिटरमाइन द मैक्सिमम लोड, क्योंकि वो तो इजीली चला जा रहा है, तो उस ग्रेडियंट को कवर करने के लिए या उस ग्रेडियंट में कितना लोड जाएगा, दैट विल नॉट गिव यू द मैक्सिमम लोड, राइट। सो कौन सा मैक्सिमम लोड देता है, ओनली विच ग्रेडियंट विल प्रोवाइड यू द मैक्सिमम लोड, रूलिंग ग्रेडियंट, ओके। तो वहां पे अगर तुम लोड कैलकुलेट करोगे मोमेंटम ग्रेडियंट में, दैट विल नॉट गिव यू द मैक्सिमम लोड, ओके। सो see train need to acquire sufficient momentum to negotiate this gradient before reaching it, मतलब जो gradient के पीछे falling gradient है उस gradient को हम लोग बोलते हैं momentum gradient, okay। and signals should not be provided in such cases, मतलब यहाँ पे मतलब उसको रोक देना है ऐसा नहीं है, इसको अपने आप ही फ्लो होते जाना है। अब यहाँ पे आके तुम सिग्नल दोगे तो क्या है, ये थोड़ा वो हो जाएगा, प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल विग्नल जनरली नहीं रहता है। अब आता है पुशर ग्रेडियंट। पुशर से नाम चल रहा है, या हेल्पर ग्रेडियंट, मतलब तुमको एक ऐसा ग्रेडियंट है वो विच इज मोर स्टीपर देन द रूलिंग ग्रेडियंट, मतलब स्टीपर तो है और स्टीपर है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब तुमको पुश करने के लिए या तुमको आगे बढ़ने के लिए यू नीड हेल्पर, तुमको और इंजन चाहिए और सपोर्ट चाहिए और एक्स्ट्रा पुल चाहिए, ठीक है। तो दैट काइंड ऑफ ग्रेडियंट इज नोन एज द पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट, ओके। अब ये वाला ग्रेडियंट हम क्यों देते हैं, देखो ये जो बोले थे ना यहाँ पे देखो 150, ये वाला देखो, ठीक है, ये वाला एक ग्रेडियंट हो गया,
ओके। सपोज ये वाला एक ग्रेडियंट है, ठीक है, सपोज ये 1 in 150 वाला ग्रेडियंट है, और दूसरा हम लोग करेंगे सपोज 1 in 100 वाला, ठीक है, ऐसा ग्रेडियंट है, ठीक है। यहाँ पे भी ट्रेन जा रहा है इस तरफ। हम लोग ऐसा नहीं दे के ऐसा क्यों दे रहे हैं? Why not providing this type of ruling gradient? Suppose ये है तुम्हारा पुशर ग्रेडियंट, ठीक है, तो क्यों हम लोग ये ऐसा वाला ग्रेडियंट नहीं देके ये वाला देना पड़ता है? बिकॉज वहां पे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है कि जैसे एक दो पॉइंट के बीच में हमको ये ग्रेडियंट देना ही है, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो सपोज इसको लंबा कर देंगे तो खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे एरिया में तुम्हारा ग्रेडियंट जो भी है टोपोग्राफी इज सच दैट इट इज हिली रीजन, ठीक है, तो वहां पे हमको ज्यादा स्पेस नहीं मिल रहा है कि इसको पूरा एकदम तान के करके वहां पे पहुंचेंगे, राइट। सो इन दैट केस वी नीड टू प्रोवाइड दिस स्टीपर ग्रेडियंट्स, ओके। तो इसी को बोलते हैं पुशर ग्रेडियंट्स, ओके। जैसे ये वाला देखो स्टीपर ग्रेडियंट्स है ये वाला, ठीक है। सो टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ट्रैक, देखो उसमें क्या था, उसमें थोड़ा लंबा ट्रैक हो गया था, ठीक है। ये वाला में देखो, ये वाला हम बोले थे थोड़ा लंबा हो गया था, और इसमें इसका ट्रैक लेंथ कितना था, छोटा सा, ठीक है। So in that case, we need to provide our pusher or helper gradient. Okay. So if the grade is concentrated in a specific section, instead of limiting the train load by providing ruling gradient, this is economical. मतलब इकोनॉमिक करने के लिए, खर्चा कम करने के लिए हम लोग को ये पुशर और हेल्पर ग्रेडियंट देना जरूरी पड़ जाता है, ओके। जैसे ये वाला देखो स्टीप है ये वाला पूरा, ठीक है। नाउ ग्रेडियंट्स इन स्टेशन एंड यार्ड, दिस इज द मिनिमम ग्रेडियंट, मतलब हमको देना है मिनिमम ग्रेडियंट, ये चाहिए बिकॉज फॉर ड्रेनेज पर्पस, मतलब बारिश से अगर पानी आएगा तो उसके लिए तो एक ड्रेनेज होना जरूरी है, ठीक है। एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द स्टैंडिंग व्हीकल्स, ओके। तो जो व्हीकल्स खड़ा हुआ है वहां पे सपोज रास्ता तुम्हारा उस एरिया का क्या बोलते हैं, जहाँ पे स्टेशन यार्ड बना है वहां पे सपोज वो टोपोग्राफी हिली टाइप का है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, इट हैज अ टेंडेंसी टू गो, जहाँ पे खड़ा है वहां पे से मूव करने का टेंडेंसी होता है, ठीक। सो इन दैट केस ऑल्सो हम लोग को लो मेंटेन करना पड़ेगा, ओके। ग्रेडियंट को लो रख देना चाहिए, जिससे कि वो तुम्हारा सपोज हिली एरिया में तुम्हारा स्टेशन यार्ड का ऐसा ग्रेडियंट है, ठीक है, ऐसा ग्रेडियंट है, यहाँ पे खड़ा था ट्रेन, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग को ये इसको लो कर देना है, स्टेशन और यार्ड में ग्रेडियंट को जितना हो सके लो करना है। और लिमिट कितना है, मैक्सिमम परमिसिबल ग्रेडियंट है तुम्हारा 1 in 400, इतना ही हम लोग स्टीप रख सकते हैं, ठीक है। एंड मिनिमम जितना देना पड़ता है, जैसे फॉर इन प्लेन एरिया, प्लेन में क्या होता है, ग्रेडियंट तो होता ही नहीं है, लेवल ट्रैक होता है, राइट। तो वहां पे भी एक मिनिमम देना पड़ेगा ड्रेनेज के लिए, विच इज 1 in 1000। ये तुम्हारा हिली एरिया जो है उसमें मैक्सिमम इतना दे सकते हैं, और ये तुम्हारा जो प्लेन फॉर ड्रेनेज पर्पस के लिए इतना दे सकते हैं। दिस इज फॉर एमसीक्यू, ये याद रखना है, ओके, एमसीक्यूज में आता है ये। तो दिस आर द स्टेशंस ग्रेडियंट्स इन स्टेशंस यार्ड्स, ओके। जैसे देखो ग्रेडियंट से यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ग्रेडियंट है, ठीक है। नाउ ग्रेड कंपनसेशन, any idea what do you mean by grade compensation? कुछ आइडिया है किसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन? देखो ग्रेडियंट की वजह से अगर तुम्हारा हिली रास्ता है, ठीक है, हिली रास्ता है ऐसा करके, ठीक है, तुम्हारा एक लोकेशन यहाँ है, एक लोकेशन यहाँ है समवेयर, ओके। सो उसको ज्वाइन करने के लिए क्या करोगे, पूरा एकदम स्ट्रेट जाता है कभी रास्ता हिली एरियाज में? नहीं, क्या जाता है, ये ऐसा घूम घूम के जाता है, राइट, ऐसा 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 करके यहाँ पे पहुंचता है रास्ता, ठीक है। कभी ट्रैवल किए तो याद रखना हमेशा घूमता रहता है रास्ता, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेडियंट पहुंचने के लिए देखो क्या किया, यहाँ से गया, एक सर्कल लिया, कर्व आया, फिर यहाँ पे पहुंचे हम, ऐसे डायरेक्ट हम लोग नहीं पहुंचे। तो क्वेश्चन में रहता है ना, व्हाई लाइक दिस, क्यों ऐसे घूम घूम के किया है, क्यों ऐसा स्ट्रेट नहीं गया है? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक
तो एक है इकोनॉमिक, यहाँ पे नहीं है ऑब्वियसली, ये लंबा रास्ता है। एक है कि सेफ्टी पर्पस के लिए। सो यहाँ से अगर जाओगे तो देखो इसका ग्रेडियंट कैसा है, एक स्टीप ग्रेडियंट है, राइट। यहाँ और यहाँ का ग्रेडियंट अगर हम डायरेक्ट ज्वाइन करेंगे तो इट विल गिव यू स्टीप ग्रेडियंट। और ऐसे करके जाओगे तो देखो स्लोली स्लोली राइज हो रहा है उसका लेवल, स्लोली स्लोली राइज होके पहुंच रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, सो इसीलिए ऐसा लंबा रास्ता भी देना पड़ता है कभी कभी। ओके, ऐसा नॉट नेसेसरी कि एकदम स्ट्रेट कनेक्ट कर दे हम लोग। ओके, सो देन व्हाट हैपेंस, सी हियर। तो यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ से जाके देखो ये तो ग्रेडियंट एक है, ग्रेडियंट तो है ही। सपोज इस जगह पे पहुंचा, गाड़ी इस जगह पे पहुंचा, ठीक है। इस जगह पे जब पहुंचा तो क्या है, यहाँ पे तो एक ग्रेडियंट ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है और इट इज फेसिंग सम एक्सटर्नल आउटवर्ड फोर्स ऑल्सो, राइट, विच इज सेंट्रीफ्यूगल, मतलब एक कर्व भी मिल रहा है उसको, ठीक है। तो ग्रेडियंट भी है, कर्व भी है, तो उसकी वजह से दो ठो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, विच इज कॉल्ड द ग्रेड रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट, और दूसरा है तुम्हारा रेजिस्टेंस ड्यू टू कर्व, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, अगर यहाँ पे तुम गाड़ी जाओगे तो ये मूव नहीं कर पाएगा। सपोज ये पूरा हेवीली लोडेड क्विक था, हेवीली लोडेड ट्रेन था, तो क्या होगा, इसको जाने में बहुत तकलीफ होगा, ठीक है। अगर वहां पे हम लोग स्टीप ग्रेडियंट रख देंगे या जितना भी यही डिजाइन, यही यहाँ पे जो ग्रेडियंट है वहां पे भी वही ग्रेडियंट है, ठीक है, लेकिन वहां पे एक्स्ट्रा क्या लोड आ रहा है, एक्स्ट्रा तुम्हारा कर्व रेजिस्टेंस भी आ रहा है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दोस रेजिस्टेंस की वजह से जो इसको मूवमेंट नहीं हो रहा है या लोड कैरी नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे जो ग्रेडियंट है यहाँ पे भी सेम रखना चाहिए था, लेकिन हम लोग क्या कर देंगे, एट द कर्व वी विल रिड्यूस द ग्रेडियंट। कर्व तो देना ही है, राइट, एक सर्टेन रेडियस का कर्व तो देना ही है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ग्रेडियंट को रिड्यूस कर देते, जिससे कि ड्यू टू रेजिस्टेंस ड्यू टू ग्रेडियंट थोड़ा कम हो जाए। तो कितना रिड्यूस करेंगे, दैट इज द ग्रेड कंपनसेशन, मतलब घटा देना है, ग्रेड को कंपनसेट कर देना है। ओके, सो एक रूलिंग ग्रेडियंट है, सपोज ये भी रूलिंग ग्रेडियंट है, यहाँ पे भी रूलिंग ग्रेडियंट था, लेकिन बिकॉज ऑफ द कर्व व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सबट्रैक्टिंग सर्टेन वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट फ्रॉम द रूलिंग ग्रेडियंट, ठीक है। सो दैट सबट्रैक्ट, जितना सबट्रैक्ट किया है उसको बोलते हैं ग्रेड कंपनसेशन। ओके, सो हम लोग तो जानते हैं कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गॉजेस। गॉज मींस व्हाट, रेलवे ट्रैक का, सपोज ये स्लीपर है तुम्हारा, ये तुम्हारा एम्बैंकमेंट है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा रेलवे ट्रैक है। ओके, दिस इज द रेलवे ट्रैक, दिस इज अनदर रेलवे ट्रैक। ओके, ये रेलवे ट्रैक है, हम क्रॉस सेक्शनल देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे नीचे स्लीपर है। सो इनर टू इनर डिस्टेंस इज द गॉज। ओके, तो ये गॉज लेंथ कितना है उसके ऊपर ये 3 टाइप का गॉज है। तो इनर टू इनर डिस्टेंस अगर 1 मीटर का है तो ये वाला मीटर गॉज बोलते हैं, 0.76 मीटर है तो ये है, या 0.67 है तो तुम्हारा क्या बोलते हैं इसको, ब्रॉड गॉज। ओके, 1.67 है तो ब्रॉड गॉज बोलते हैं। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द गॉजेस, दीज आर द कंपेंसेशन, ग्रेड कंपेंसेशन। अगर ये नैरो गॉज है तो कितना कंपेंसेशन करना है, 0.02% पर डिग्री ऑफ कर्व, मतलब यहाँ पे जितना भी डिग्री होगा उसका 0.2% टाइम्स माइनस कर देना है। अगर सपोज यहाँ पे 2 डिग्री कर्व है तो कितना परसेंटेज कम हो जाएगा फॉर नैरो गॉज, सपोज हियर इट इज 2 डिग्री कर्व, ठीक है, और ये तुम्हारा नैरो गॉज है सपोज, ठीक है। ये जो गॉज है मतलब यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है उसका इनर टू इनर डिस्टेंस इज सपोज 0.76 मीटर, मतलब ये नैरो गॉज है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज हमको कम कर देना है ग्रेडियंट को, इफ द डिग्री ऑफ कर्व इज 2, तो नैरो गॉज के लिए पर डिग्री कितना कम करना है, माइनस करना है 0.02%। तो डिग्री हम लोग बोले थे 2, तो कितना कम करना पड़ेगा, हाउ मच परसेंटेज, हेलो, 1 डिग्री का 0.02 है तो 2 डिग्री का कितना होगा नैरो गॉज के लिए, अरे ना कि केटे गलो बोलो, 0.02 into 2 4%, राइट, सिंपल। तो अगर ब्रॉड गॉज था, अगर वो वाला ब्रॉड गॉज होता तो कितना करना चाहिए था, अगर 2 डिग्री का, अगर सपोज 3 डिग्री कर्व है वहां पे तो 3 into 0.04, ओके,
तो ये रिमेम्बर करना है कि ब्रॉड गॉज है, मीटर गॉज है, नैरो गॉज है, ओके, और कितना डिग्री है, ये याद रखना है. सो डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री एंड द टाइप ऑफ द गॉज, ग्रेड कंपनसेशन का वैल्यू ये है या ये, whichever is less. ओके, तो देखो यहाँ से एक एग्जांपल, व्हाट शुड बी द एक्चुअल रूलिंग ग्रेडियंट, मतलब जो प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करते हैं एक्चुअली इन द कर्व. ओके, इफ द रूलिंग ग्रेडियंट इज 1/200, ओके, ऑन अ बीजी ट्रैक, मतलब ब्रॉड गॉज ट्रैक, एंड द डिग्री ऑफ कर्व इज 3 डिग्री. ठीक है, तो हमको कौन सा फॉलो करना है, ऑब्वियसली ये वाला, मतलब 0.04% पर डिग्री ऑफ द कर्व. ओके, ये देखना है. तो देखो रूलिंग ग्रेडियंट कितना है, 1/200 है, मतलब इसको अगर परसेंटेज में कर दोगे तो 1/200, मतलब 1/200 into 100 परसेंटेज में करोगे तो 0.5%. ओके, एंड डिग्री ऑफ कर्व 3 डिग्री है, सो ग्रेड कंपनसेशन फॉर ब्रॉड गॉज इज व्हाट, 0.04 पर डिग्री कर्व, सो 0.04 into 3 डिग्री, 0.012%. ठीक है, एक्चुअली ऐसा रूलिंग ग्रेडियंट ये वाला था. ठीक है, लेकिन हम लोग को यही अगर देंगे तो वहां पे रेजिस्टेंस हो जाएगा, वहां पे कर्व रेजिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी रेजिस्टेंस टू ग्रेडियंट आ जाएगा. ठीक है, तो हमको क्या करना है, इतना नहीं देंगे, थोड़ा कम कर देना है. तो कितना कम करना है, 0.12%. ओके, नाउ व्हाट इज द एक्चुअल, मतलब जो प्रैक्टिकली वहां पे देंगे तो एक्चुअल कितना है, रूलिंग ग्रेडियंट माइनस 0.12 इज दिस मच परसेंटेज. अगर इसको डिवाइड बाय 100 करके या जो भी करके करोगे तो देखना ये 1/264 आ जाएगा. ओके, 0.3 डिवाइड बाय 100 कर दो तो ये 1 ऊपर रख दोगे तो नीचे 264 आ जाएगा. क्लियर? सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द ग्रेड कंपनसेशन. ओके ओके, ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कर्व्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे. ओके ओके देन, ओके मैम. ठीक है. ओके देन, ठीक है, थैंक यू. थैंक यू मैम. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू, वेलकम.